میں دھڑکتے دل کے ساتھ عقب نما آئینے میں دشمنوں کی گاڑی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے اندھیرے میں پھلجھڑیاں سی چھوٹتی نظر آئیں اور پھر فوراً ہی ایک بلند آہنگ دھماکے نے رات کے سناٹے کی چادر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ مجھے شناخت میں بس چند لمحے لگے کہ 12 بور کارتوس چلایا گیا ہے۔ فاصلہ خاصا کم ہونے کے باوجود میری گاڑی شارٹ گن کی کارگر حد سے باہر تھی۔ کارتوس کے سارے چھرے فضا میں ادھر ادھر بکھر گئے ہوں گے۔ اگلا فائر پکی رائفل سے ہوا۔ اس بار میں نے دھماکے سے پہلے گولی خاصے پاس سے گزرنے کا سناٹا محسوس کیا۔ صورتحال بے حد ہلاکت خیز ہو چکی تھی۔ پکی رائفل کی گولی گاڑی کی باڈی چیر کر مجھ تک نہ بھی پہنچ پاتی تو ٹائر کے چیتھڑے ضرور اڑا دیتی۔ اس کے بعد گاڑی کو الٹنے اور قلبازیاں کھانے میں چند لمحے لگتے۔ اس کے بعد میں بھیگے چوہے کی طرح دبوچ لیا جاتا اور اذیتناک موت میرا مقدر بن جاتی۔ مرنے کا امکان تو اپنی جگہ قوی تھا ہی، اپنے پاس موجود انمول اثاثہ گنوانے کا میں کسی بھی قیمت پر متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے کڈھب رستے سے جڑے خطرات پس پشت ڈال کر اپنی بیوک کے انجن کو اپنی پوری طاقت مکمل استطاعت کے مظاہرے کا حکم صادر کر دیا۔ اگلے چند لمحوں میں میری گاڑی طوفانی رفتار سے لیکن لڑکھڑاتی اچھلتی کودتی بری طرح ہچکولے کھاتی دوڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میری ڈرائیونگ کی آزمائش مزید سخت ہو گئی۔ گاڑی ہر 30-40 گز کے بعد کئی فٹ اونچی اور اس سے کہیں لمبی چھلانگ لگا کر ناہموار زمین پر گرتی تھی۔ کئی بار گاڑی ایک طرف کے پہیوں پر ترچھی گری اور الٹنے سے بال بال بچی۔ پتہ نہیں میں واقعی پچھلی گاڑی سے فاصلہ بڑھانے میں کامیاب رہا تھا یا انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں فائرنگ سے ایمونیشن ضائع کرنے کے علاوہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے بعد پیچھے آنے والی گاڑی سے کوئی گولی نہ چلائی گئی اور میں گاڑی کو سنبھالنے کی سر توڑ کوشش میں اتنا مصروف تھا کہ عقب نما بغلی آئینہ دیکھنے کی مہلت ہی نہ مل پائی۔ میری ذاتی رائے میں یہ بیوک جیسی اعلیٰ درجے کی گاڑی ہی کا اعجاز تھا کہ میں نے راستے کی ناگفتہ حالت کے باوجود کسی نہ کسی طرح ایک ہی حلے میں کئی میل کا سفر طے کر لیا۔ اس دوران میں چھوٹی بڑی پہاڑیوں کا سلسلہ کم ہوتا چلا گیا تھا اور راستے کی حالت قدرے بہتر ہونے لگی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر ناہموار کچے راستے کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ انجن کی بے ہنگم چیخم دھاڑ اب ناراضی بھری خرخراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سٹیئرنگ کو بآسانی قابو میں رکھنے کے قابل ہوتے ہی میں نے عقب کا جائزہ لیا۔ وہاں گہری تاریکی میں دور دور تک روشنی کی ہلکی سی رمق بھی دکھائی نہ دی۔ اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ میں نے اپنے غنیم کم از کم میل پیچھے چھوڑ دیے ہیں، جبکہ اس ہموار سڑک پر تو وہ میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے گاڑی کی رفتار مناسب حد تک کم کر دی۔ تبھی مجھے سامنے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر کچھ روشنیوں کی جھلملاہٹ دکھائی دی۔ مزید آگے بڑھا تو ایک چھوٹی سی انسانی آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ پھر رفتہ رفتہ اندازہ ہوا کہ یہ شہری سہولیات والی ایسی بستی ہے جو بعض بڑی گزرگاہوں سے ملحق مقامات پر تجارتی مقاصد کے لیے قائم کی جانے والی اکا دکا دکانوں کی شکل میں سامنے آتی ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وسعت اختیار کر لیتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہی بستی آندھرا ریاست کی پہلی انسانی آبادی ٹھوما کنٹا تھی۔ میں نے قیاس کیا کہ ڈاکوؤں کی طرف سے میرا تعاقب ختم کرنے کی ایک وجہ اس بستی کی قربت بھی ہو سکتی ہے۔ میں جیسے آگے بڑھتا گیا مجھے چھوٹی بڑی دکانیں، سفری طعام خانے اور چھوٹے بڑے مکانات بھی دکھائی دینے لگے۔ اب مجھے یہ فیصلہ درپیش تھا کہ رات ٹھوما کنٹا نامی اسی بستی میں بسر کروں یا اپنا سفر جاری رکھوں۔ کٹھب پہاڑی راستوں پر اعصاب شکن حالات میں اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے جسم کی تمام ہڈیاں اور پٹھے رحم کی فریاد کر رہے تھے۔ ادھر میرا دماغ بھی تھپکیاں دے رہا تھا کہ کرناٹکا ریاست کی سرحد پار کر کے میں فی الحال سنگین خطرے کی زد سے باہر آ گیا ہوں، اس لیے اپنے تھکے ٹوٹے جسم کو آرام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بستی میں داخل ہونے تک کے وقفے میں سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بستی میں رک کر کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ یہاں رات گزارنے یا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ یہاں کے باشندوں سے گفتگو کے بعد حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کروں گا۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد میں نے ایک نسبتاً صاف ستھرے طعام خانے کا انتخاب کیا۔ اس وقت وہاں ایک پرانی سی جیپ اور ایک سامان بردار ٹرک موجود تھا۔ میں نے گاڑی طعام خانے کے بڑے دروازے کے سامنے ایسی جگہ روکی جہاں وہ ممکنہ طور پر میری نظروں کے سامنے رہے۔ گاڑی اچھی طرح لاک کر کے اپنا لوڈڈ پسٹل لباس میں چھپائے میں طعام خانے کے بڑے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ہال موجود تھا جس کے دائیں طرف باورچی خانہ اور برتن وغیرہ دھونے کے لیے مخصوص جگہ تھی، جبکہ باقی بیشتر حصے میں کھانا کھانے کے مختلف انداز کے انتظامات موجود تھے۔ سامنے دیوار کے ساتھ 3 بڑے بڑے چبوترے بنے ہوئے تھے جن پر موٹی دریاں اور بھاری بھرکم تکیے بھی موجود تھے۔ ان سے ذرا ہٹ کر فرشی نشستوں کا بھی اہتمام تھا۔ ایک طرف کرسی میزوں کی بھی ایک قطار موجود تھی۔
लेकिन उनकी हालत से लग रहा था कि शायद महीनों से उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही उनकी सफाई सुथराई पर तवज्जो दी गई है। उस वक्त हॉल में 5 अफराद 2 टोलियों की शक्ल में खाना खा रहे थे। उनमें से 3 अफराद वाली टोली एक चबूतरे पर डेरा जमाए हुए थी, जबकि 2 अफराद जमीन पर बिछी दरी पर बैठे खाना खा रहे थे। अंदर दाखिल होने के बाद मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि खद्दर की धोती और मकामी तर्ज के कुर्ते में मलबूस एक पुख्ता उम्र शख्स तेजी से चलकर मेरे पास पहुंचा और दोनों हथेलियां उमूदी रुख पर आपस में जोड़कर शायद तेलुगु जबान में पुरजोश लहजे में कुछ कहा। मैंने जवाबी प्रणाम करने के बाद सवालिया नजरों से उसका मुंह देखने पर इक्तिफा किया। गहरी सांवली रंगत की वजह से उसके मुस्कुराने पर सफेद दांत कुछ ज्यादा ही जगमगाते दिखाई दे रहे थे। मेरे चेहरे पर कोई तासुर न पाकर उसने अपना मफहूम शिकस्ता हिंदी में दोहराया, आपका स्वागत सर। मैंने इजहार तशक्कुर के लिए सर हिलाया और उसकी रहनुमाई में सामने बने चबूतरों की तरफ बढ़ा। पहले से मौजूद 3 मेहमान दरमियान वाले चबूतरे पर बराजमान थे, लिहाजा मुझे उनसे दाएं तरफ वाले चबूतरे का इंतखाब करना पड़ा। इस चुनाव की बड़ी वजह यह थी कि वहां से मेरी गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। मैं तकिए से टेक लगाकर बैठ गया तो मेरे मेजबान ने, जो शायद उस वक्त दस्तयाब वाहिद मुलाजिम या फिर शायद मालिक था, मुझसे पूछा, भोजन सर? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, भोजन में क्या है? उसने जवाब में मकामी जबान में कुछ कहा जिसका एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आया। एन उसी वक्त साथ वाले चबूतरे की तरफ से किसी ने आवाज लगाकर साफ सुथरी इंग्लिश जबान में कहा, इसे कहें कि आपको बोबाटलू और चिपापलूसू ला दे, यानी पराठा और मछली का सालन। बाकी मकामी खाने आपको अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, अगर चिकन खाते हैं तो बिरयानी मिल जाएगी। मैं इस दौरान में मशवरा देने वाले उधेड़ उमर खुशपोश शख्स को देख चुका था। मैंने इंग्लिश ही का सहारा लेते हुए दोस्ताना लहजे में कहा, इतने मुश्किल नाम मुझसे कहाँ लिए जाएंगे मोहतरम, आप ही मदद फरमा दें। बिरयानी मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी पसंद की चिकन बिरयानी यहाँ मिल सकेगी। मेरी बात सुनकर उन तीनों अफराद ने कहा लगाया और फिर उसी शख्स ने मेरी तर्जुमानी करते हुए खाने का ऑर्डर दे दिया। उन लोगों ने खाना खा लिया था और अब शायद चाय के इंतजार में तकियों के सहारे नीम दराज थे। मुझे खाने के इंतजार में फारिग बैठे देखकर इस बार उनमें से सबसे कम उम्र दिखाई देने वाले शख्स ने मुझे इंग्लिश में मुखातिब किया, बुरा न माने सर तो बताएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में कहा, बुरा न माने तो नौजवान साहब, यही सवाल मैं आप लोगों से कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी तर्जुमानी करने वाला शख्स पुरजोश लहजे में बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम सुंदरा रामी रेड्डी है। उस नौजवान का नाम सद्दा शिवराज है, लेकिन हम इसे प्यार से राजू कहते हैं। ये हमारे तीसरे साथी राम देवपलई हैं। मैं आंध्रा के नेलोर जिला के गांव अलागनी पाडू का छोटा सा जमींदार हूँ। मेरे ये दोनों दोस्त आंध्रा रियासत ही के शहरों विजयवाड़ा और कृष्णा में रहते हैं और दोनों का अपना कारोबार है। हम साल में कभी 1 और कभी 2 बार रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हिरन वगैरह के शिकार के लिए निकलते हैं। ऐसे हर दौरे से पहले हम अपने मुंतखब इलाके का तफसीली जायजा लेते हैं। अब भी इसी इरादे से यहाँ आए हैं। अब आप अपने बारे में बताइए। मैं इस दौरान में कहानी तैयार कर चुका था। मैंने कहा, मैं बड़ेपन का सबूत देते हुए अपने बारे में इतनी तफसील से मालूमात देने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम हरि प्रसाद सुपरू है। मेरे वालिद मुल्क की तकसीम से 30 साल पहले अपनी बीवी समेत लंदन मुंतकिल हो गए थे और मेरी पैदाइश वहीं हुई थी। मैं मुल्क के बंटवारे के मौके पर यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था। हिंदुस्तान आजाद हो गया तो मेरे वालिद ने अपना सारा कारोबार फरोख्त करके वतन मुंतकिल होने का इरादा किया, लेकिन मैंने उनकी सख्त मुखालिफत की और हिंदुस्तान मुंतकिल होने से साफ इनकार कर दिया। इस असना में मेरा खाना आ चुका था। एक तो मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, दूसरे मैं उनके तजस्सुस को हवा देना चाहता था जो उनके चेहरे से वाज़ेह था। लिहाजा मैंने अपनी दास्तान अधूरी छोड़कर खाने में हाथ डाल दिया। पराठे गर्म और खस्ता थे और मछली भी सूरजमुखी के तेल की हल्की सी मिठास के बावजूद खासी खुश जायका थी और सबसे अच्छी बात, उसमें कांटों की बहुतात नहीं थी। मैं अपने नए मेहरबानों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता था, लिहाजा चंद बड़े बड़े लुकमे खाने के बाद मैं अपनी दास्तान आगे बढ़ाने के लिए उन तीनों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा, वो दोनों अगले 2 साल तक मुझे मनाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। मैं अपने वालिदैन का मुंह चढ़ा इकलौता बेटा था। वो दोनों बखूबी जानते थे कि मेरी बात अटल होती है और मुझे इंग्लैंड छोड़कर जाने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान मुंतकिल होने का अरमान अपने सीनों में दफन कर लिया और सिर्फ अपने आजाद वतन की जियारत पर इक्तिफा करने का फैसला कर लिया। बदकिस्मती से उन्हें इसका मौका न मिल सका और वो दोनों साल भर के वक्फे से बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने रुककर उन तीनों का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया, माफ कीजिएगा, आप लोग मेरी राम कहानी से बेजार तो नहीं हो रहे? दरअसल ये मामला बयान करते हुए मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ।
उन तीनों ने यकज़बान होकर बताया कि वो मेरा किस्सा गहरी दिलचस्पी और यकसुई से सुन रहे हैं और मैं बिला तवक्कुफ उसे जारी रखूं। तब मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, वालिदैन की यक के बाद दीगरे रुखसती से मैं अचानक दुनिया में तन्हा हो गया। अपनी जिंदगी की वीरानी दूर करने के लिए मैंने शादी कर ली, लेकिन शायद मेरी ही फजूल आदतों की वजह से हम में अलहदगी हो गई और मैं एक बार फिर तन्हा हो गया। अगले चंद सालों में वो तन्हाई पछतावे में ढल गई कि मैंने वालिदैन की अपने जड़ों की तरफ वापस लौटने की वाहिद और सबसे बड़ी ख्वाहिश क्यों पूरी न की। फिर ये पछतावा खुद मेरे दिल में अपने बाप दादा की धरती अपनाने की ख्वाहिश में बदल गया और साल भर पहले मैं अपना सब कुछ बेचकर लंदन से दिल्ली मुंतकिल हो गया। वो तीनों बदस्तूर महवियत से मेरी बात सुन रहे थे। मैंने जुमला खत्म किया तो राजू ने बेताबी से पूछा, तो फिर क्या हुआ सुपरू जी? मेरा मतलब है हिंदुस्तान मुंतकिल होने के बाद। मैंने कहा, यहाँ मुंतकिल होने के बाद मैंने दिल्ली में एक अच्छा सा मकान खरीद लिया और एक छोटे से कारोबार में स्लीपिंग पार्टनर बन गया, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के इस वतन के गोशे गोशे की सयाहत करने की ख्वाहिश रखता था। शायद मेरे वालिदैन की बेचैन रूहें अब भी मेरे आसपास भटकती हों और इस तरह उन्हें सुकून पहुंचाकर मैं अपनी खता की तलाफी करने में कामयाब हो जाऊं। मैं इसी सिलसिले में पूरा कर्नाटका घूमकर आंध्रा रियासत पहुंचा हूं। मेरी बात मुकम्मल होते ही सुंदरा रामी ने जोश और उदासी के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, आपकी जीवन कहानी तो बहुत ही दुख भरी है सुपरू जी। वालिदैन के अरमान पूरे न करने का पछतावा तो वाकई बहुत अजियत देता है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है कि आपने उनके इंतकाल के बाद ही सही उनकी बात मान तो ली। राजू ने शायद बड़ी मुश्किल से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार किया। उसने फौरन पुरजोश लहजे में कहा, हरि प्रसाद जी, आप चाहे अपने स्वर्गवासी वालिदैन की रूहों के सुकून के लिए मुल्क का चक्कर लगा रहे हैं, मेरा दिल तो आपके तर्ज जिंदगी पर लट्टू हो रहा है। घर बार का बोझ पीछे न लगा होता तो मैं आपका बॉडीगार्ड बनकर आपके साथ हिंदुस्तान की सैरो सयाहत करने में जिंदगी बिता देता। सुंदरा के मुकाबले में राजू की इंग्लिश कम फसी थी, ताहम वो ज़बान बयान की छोटी मोटी गलतियां खातिर में लाए बगैर बेधड़क बोलता गया। इस दौरान में उन दोनों का साथी रामदेव बज़ाहिर गौर से हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन जब वो बोला तो अंदाजा हुआ कि वो इस दौरान में सूरत हाल का गहराई से तज्जिया करता रहा है। उसने राजू के मजीद बोलने से पहले ही मुझे मुखातिब करके गंभीर लहजे में पूछा, एक बात तो बताएं सुपरू जी, आपने कहा है कि आप कर्नाटका से यहाँ यानी आंध्रा रियासत में आए हैं। मैंने जोर देकर कहा, हाँ रामदेव जी, मैंने यही कहा है। मैं अपनी गाड़ी में कुछ ही देर पहले गावरी गांव के रास्ते यहाँ पहुँचा हूँ। रामदेव ने मेरी बात गौर से सुनी और उसी गंभीर लहजे में पूछा, अभी यानी सूरज डूबने के बाद तन तन्हा। ये सुनकर अचानक सुंदरा और राजू को जैसे एक साथ करंट का जोरदार झटका लगा। वो दोनों बैक वक्त एक ही बात बोले, तहम राजू की आवाज गालिब थी, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा उन दोनों की आंखें हैरत से फैली हुई थी। रामदेव की आंखों में भी बेयकीनी नुमाया थी। चंद लम्हों के बाद सुंदरा ने अपने ताज्जुब पर काबू पाते हुए अंग्रेजों के से शाइस्ता लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, माफ कीजिएगा, हम आपको झूठा करार नहीं दे रहे, लेकिन ये भी हकीकत है कि शाम होने के बाद गावरी गांव से यहाँ तक सड़क के 10-12 मील के टुकड़े पर बंदूकों से लैस डाकुओं की टोलियों का मुकम्मल राज होता है। वो दरिंदे इतने खूंखार और निडर हैं कि आम शहरियों की तो औकात ही क्या है। वो पुलिस वालों को भी हथियार छीनकर हलाक करने से गुरेज नहीं करते। इसलिए कोई मुसाफिर गाड़ी अंधेरा फैलने के बाद उधर का रुख नहीं करती और दोनों रियासतों की पुलिस रात होते ही अपने ठिकानों तक महदूद हो जाती है। सुंदरा ने गुफ्तगू के दौरान रुककर मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और फिर उसी दोस्ताना लहजे में कहा, हमें आपकी बात इसीलिए नाकाबिले यकीन लग रही है। रात के वक्त किसी तन्हा शख्स के इस खतरनाक इलाके से सही सलामत गुजर कर यहाँ पहुँच जाने के दावे का यहाँ कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं इस दौरान में फैसला कर चुका था कि मुझ पर जो गुजर चुकी है उसे इन अजनबियों के सामने बयान करने का कोई फायदा नहीं। अव्वल तो ये मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और अगर मैंने इन्हें यकीन दिला भी दिया तो ये खामखा मेरे बारे में तजस्सुस में मुब्तला हो जाएंगे कि ये कौन तीसमार खान है जो इतने खतरनाक डाकुओं को धूल चटाकर यहाँ तक पहुँच गया। खुद को नुमाया करने का मुझे कोई फायदा न होता, अलबत्ता इस कारनामे का चर्चा करके अपनी अना को तस्कीन देना मेरे लिए भारी पड़ सकता था। मैंने कदर तवक्कुफ के बाद अपने लहजे में शर्मिंदगी लाते हुए कहा, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मेरी बातों से आपने गलत तासुर लिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं इस बस्ती में अभी कुछ देर पहले दाखिल हुआ हूँ, वरना उस खतरनाक रास्ते को तो मैं दिन की रोशनी में ही पार कर आया था। मुझे तो दोपहर से पहले डोडाबलपुर कस्बे ही में डाकुओं के खतरे से आगाह कर दिया गया था और इसीलिए मैं डाकुओं के डर से गावरी गांव में रुके बगैर ओबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से गाड़ी भगाता हुआ सूरज ढलने से पहले ही इस बस्ती के करीब पहुंच गया था।
लेकिन कोई एक फरलांग पीछे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। बस्ती में टायर ट्यूब की मरम्मत करने वाले की तलाश और फिर पंक्चर लगवाने में घंटा भर मजीद जाया हो गया। मेरी बात सुनकर उन तीनों ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर राजू ने कहा, अच्छा तो ये बात है, आप दिन ढलने से खासे पहले वहाँ से गुजर आए थे, इसीलिए खैरियत से यहाँ पहुँच गए। सुंदरा ने कहा, हम माजरत चाहते हैं कि हमने आप पर शुबा जाहिर किया, वरना आपने तो वाकई अंधेरे में खतरनाक पहाड़ी इलाका पार करने का दावा नहीं किया। हमने अपने तौर पर फर्ज कर लिया था। बहरहाल आप खाने से फारिग हो चुके हैं तो हमारे पास आकर बैठें ताकि ज्यादा इत्मीनान से तबादला ख्याल हो सके। आप मुझे बहुत ज़हीन, खुश मिजाज और नस्तालीक इंसान लगते हैं। आपसे बात करने में मजा आएगा। मेरे पास इस दोस्ताना फरमाइश को ठुकराने का कोई जवाज नहीं था। मैं जैसे ही उन तीनों के पास जाकर बैठा, सुंदरा ने ढाबे के मालिक को इशारे से बुलाकर तेलुगु भाषा में चंद जुमलों में कुछ कहा, जिसमें से मुझे चाय ही समझ आ सका। इस्तिफसार करना मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैंने ज्यादा तवज्जो न दी। ढाबा मालिक चला गया और कुछ ही देर में चाय की 4 प्यालियां साथ लिए वापस आ गया। मीठा बहुत मुतवाजन होने की वजह से कड़वाहट की हद तक कड़क चाय भी पुरलुत्फ लगी। मेरी तरह उन तीनों ने भी चाय की तारीफ की और ढाबे के मालिक को, जिसे उन्होंने गणपत के नाम से पुकारा था, आवाज़े बुलंद दाद पेश की। फिर सुंदरा ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, अपनी समझदारी की वजह से आप यहाँ तक तो खैरियत से पहुँच गए, आगे का क्या प्रोग्राम है? मैंने अपने लहजे में तरंग भरते हुए कहा, मैं अपना प्रोग्राम तो पहले ही बता चुका हूँ सुंदरा रामी रेड्डी जी। मुझे दरमियान में आने वाला सारा हिंदुस्तान उबूर करके दिल्ली पहुँचना है। अलबत्ता यहाँ से मैं मशहूर तारीखी शहर हैदराबाद पहुँचना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मेरी जबान से लफ्ज हैदराबाद सुनकर वो तीनों ही चौंके हैं और उन्होंने मानी खेज अंदाज में बाहम नजरों का तबादला किया है। ये भांपते हुए मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, मैंने इंग्लिस्तान में निजाम हैदराबाद की दौलत और शान शौकत के बहुत किस्से सुने हैं। मैं साबिका हैदराबाद दक्कन रियासत के दारुल हुकूमत का नजारा करना चाहता हूँ। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद सुंदरा ने कहा, अच्छा इरादा है, लेकिन मुल्क की आजादी के बाद हैदराबाद दक्कन रियासत पर हिंदुस्तानी अफवाज की चढ़ाई और कब्जे के बाद निजाम हैदराबाद तो अब रस्मी हुक्मरान ही रह गए हैं। पूरी रियासत कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र में बंटने के बाद उनकी लगभग सारी दौलत भी हिंद सरकार के कब्जे में चली गई है। उसकी बात सुनकर मैंने पैंतरा बदला। कहा, ये तो खैर हिंदुस्तानी हुकूमत ने अच्छा ही किया है, वरना सुना है निजाम मीर उस्मान अली खान तो हैदराबाद दक्कन को पाकिस्तान में जम करने पर तुले हुए थे और उन्होंने भारी रकम कायदे आजम के पास पाकिस्तान भिजवाई थी। मेरी बात सुनकर उन तीनों में गोया जोश की लहर दौड़ गई। तीनों ही बात करने को बेताब थे, ताहम गुफ्तगू में सबकत राजू ने हासिल की। बोला, निजाम का बस चलता तो हैदराबाद दक्कन को पाकिस्तानी रियासत बनाकर हिंदुस्तान के सीने में खंजर की तरह गाड़ देता। उसे दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान तो सब कहते हैं, कोई ये बात नहीं करता कि वो और उसके बाप दादा ने गरीब आवाम का खून चूस कर दौलत का ये ढेर इकट्ठा किया है। उसकी बात पूरी होने के बाद रामदेव ने निस्बतन मुतवाजन और धीमे लहजे में कहा, आसिफ जाई हुक्मरान सदियों से गरीब आवाम के वसाइल पर कब्जा किए बैठे हैं। ये गोलकंडा की जिन हीरे जवाहरात उगलती कानों के बल पर दुनिया का सबसे अमीर खानदान बने बैठे हैं, उस पर पूरी रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वासियों का हक है। इस मौके पर सुंदरा रामी ने इन बातों पर मेरे मजीद ख्यालात उगलवाने के लिए पूछा, आपके ख्याल में क्या हिंद सरकार को मीर उस्मान के पास मौजूद हजारों किलो सोना चांदी और करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात भी अपने कब्जे में नहीं कर लेने चाहिए? मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दौलत सरकारी खजाने में जमा करने की बजाय फौजी असलहा और लड़ाका तैयारों की खरीदारी में खर्च करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सलामती को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से खतरा दरपेश है। मेरी बात शायद उन तीनों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक थी। राजू ने चहकते हुए कहा, ये तो आपने सोने जैसी बात कर दी सुप्रू जी। अपने वतन की सलामती से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग कहा करते थे कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है और निजाम तो लाख क्या करोड़ों बल्कि शायद अरबों की असामी है। आखिरी जुमले तक पहुंचते पहुंचते राजू का लहजा धीमा होकर राजदाराना रंग इख्तियार कर गया। तभी मुझे लगा कि राजू से जरा पीछे बैठे सुंदरा ने गालिबन कचोके देकर या चुटकी भर कर बात को उस तरफ आगे बढ़ाने से रोका है। तभी मैंने उन तीनों को बैक वक्त मुखातिब करके कहा, आप लोगों ने मेरी मंजिल तो मालूम कर ली, लेकिन अपना नहीं बताया कि क्या इरादे हैं। उन तीनों ने नजरों ही नजरों में गोया आपस में मशवरा किया। फिर सुंदरा ने कहा, अजीब इत्तेफाक है कि हम लोगों ने भी हैदराबाद जाने का इरादा बांध रखा है। दरअसल हमें कम से कम 2 अच्छी किस्म की शिकारी बंदूकें खरीदनी हैं। पहले हमारा इरादा था कि 1-2 दिन नेलोर में गुजार कर हैदराबाद की तरफ निकलेंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि आपके साथ यहीं से सीधे निकल चलें। कुछ रकम हमारे पास पहले ही मौजूद है, बाकी का वहीं हैदराबाद से बंदोबस्त हो जाएगा। वहाँ हमारे बहुत से दोस्त और रिश्तेदार मुकीम हैं। उसकी ये बात मुझे अजीब सी लगी।
हमारी मुलाकात अभी कुछ ही देर पहले हुई है और हमारे ताल्लुकात अभी बमुश्किल ही दोस्ती के जुमरे में शुमार किए जा सकते हैं, और ये लगभग मुकम्मल अजनबी लोग अपने प्रोग्राम को मेरी रफाकत के लिए तब्दील करने पर आमादा हैं। ताहम मैं उनके खिलाफ कोई वाज़ेह शहादत मिलने तक अपने दिल में शुकूक को जगह देना नहीं चाहता था। उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ने पर ही कोई हतमी राय कायम की जा सकती थी।